So good morning, student. Today we are going to start with the unit 1 of Indian economy, which is related to, okay, we have already started with the unit 1. Unit 1 is development experience of India 1947 to 1990. So there are basically three main chapters in this unit. One is Indian economy on the eve of independence. Another is growth and development of agriculture, industry, and foreign trade from the year 1947 to 1990. And third one is economic reforms since 1991. So before vacations, we had covered this chapter of Indian economy on the eve of independence. 5-year plans also we had covered. Now we are going to start with the next chapter, which is growth and development of agriculture, industry, and foreign trade. Out of which we are going to start with the agricultural part today. ठीक है, हम तीन हमारे मेन जो सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड, इनकी क्या सिचुएशन रही 1947 से लेके 1990 तक, ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं. तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम ले रहे हैं एग्रीकल्चर. ठीक है, so just give me a minute so that okay. So बेटे एग्रीकल्चर के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर नॉर्मली जब हम वर्ड यूज करते हैं तो आपको लगता है कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, ठीक है, बट नो, एग्रीकल्चर इज अ वाइडर टर्म. इट कंप्राइजेस not only the practice of cultivating plants, crops, but also livestock. ठीक है, जो हम फार्मिंग करते हैं, कैटल रेयरिंग होती है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है, फिशरी होती है, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है. ठीक है, सो एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया. आपने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में एग्रीकल्चर के बारे में कुछ पढ़ा है कि नियरली 75% of the population used to depend upon the agriculture for their livelihood. ठीक है, now naturally that percentage has declined, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी इकोनॉमी बेटे डेवलप करती जाती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है वो हमें यही बताता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करती जाती है, एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम होती जाती है और सेकेंडरी और टर्शरी की बढ़ती जाती है. The same has happened with India. India is also a developing economy. So now no more 72% people are dependent upon agriculture for their livelihood. But still a large portion of our population, nearly about 42.7%, nearly half कह सकते हैं हम, है ना, तो 42.7% of the population अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है अपने लाइवलीहुड के लिए. ठीक है, सो विच मीन्स okay, just wait. Okay, so let's now discuss the features of agriculture. तो बेटे first of all, agriculture is the main occupation. It provides employment to lot of population. So nearly currently अगर हम data देखें तो it is 42.7% of the population. ठीक है, then जो agriculture है that is dependent upon monsoon. आज की जो agriculture है that is dependent upon monsoon. तो we do not, Indian agriculture की हम बात करें, we are discussing the features or characteristics of Indian agriculture. We live in India, so we should know what is our agricultural sector like. So first of all, it is the main source of livelihood. Then it is dependent upon monsoon. If rainfall is good, then the harvest is also good. But if we fail to get good rainfall, we do not get good harvest, right? So agriculture is dependent upon monsoon. Then bete our agricultural sector is labor intensive. Labor intensive है, मतलब हम मैकेनाइज्ड मीन्स यूज नहीं करते हैं.
Still in India we are confined to traditional means. You go to any, see the picture is there, the child has attached picture. Here the work is being done manually, right? So very few farmers in India, or very less percentage of farmers in India are there which make use of capital intensive techniques. Capital intensive means making use of machines like tractors, threshers, harvesters, right? Mainly जो farmer है वो small और marginal farmer है इंडिया में, तो वो depend करता है कैटल के ऊपर, ठीक है, वो डिपेंड करता है मैनुअल लेबर के ऊपर फॉर सोइंग एज वेल एज हार्वेस्टिंग. देन अंडरएम्प्लॉयमेंट इज अनदर फीचर ऑफ आवर इंडियन एग्रीकल्चर. अंडरएम्प्लॉयमेंट का कौन सा सीन? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट in Indian agriculture, because we have a joint family system. So if there is one farming family, naturally that family is going to grow. आगे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, तो वो फार्मिंग जो है वो एक फैमिली ऑक्यूपेशन बन जाती है. तो जितने लोगों का बर्थ होता है वो उसी पीस ऑफ लैंड के ऊपर काम करने लग जाते हैं. तो वही काम जो पहले 4 लोग मिलके करते थे, आज वही काम 10 लोग मिलके कर रहे हैं. तो उससे क्या होता है, आउटपुट में इंक्रीज नहीं आता. Apparently we see everybody is engaged in doing work, but basically they are not contributing anything to the production. Their productivity is zero, which means if we remove a few of them from the farms, even then our output will not be adversely affected. Got it, bete? So underemployment, that is disguised unemployment, एक estimate के according nearly 25% of Indian farming families, they are disguisedly unemployed, right? So next feature of Indian agriculture, bete, small size of holding. So in India the size of holding is very very small. Most of the farmers, they are small and marginal farmers, meaning thereby that their farm size is less than 2 hectares. So average size of land holding in India is 2.3 hectare. यानी on an average एक farmer के पास सिर्फ 2.3 hectares of land रहता है. ऑस्ट्रेलिया के साथ इसको कंपेयर करें तो average size of holding is 1993 and in US it is 158 hectares. See how we are lagging behind. So the basic reason here is our laws of inheritance. जब एक फादर की डेथ होती है तो उसकी प्रॉपर्टी शेयर हो जाती है. तो सपोज करो एक फार्मर के पास 20 हेक्टेयर लैंड था, उसके 4 बच्चे हुए, तो उसकी जब डेथ हो गई तो वो पूरा फार्म 4 बच्चों में डिवाइड हो गया. यानी नाउ एवरी फार्मर इज होल्डिंग 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. अब इनकी आगे शादियां हुई, इनके बच्चे हुए, जब इनकी डेथ हो जाएगी, लेटर से इनके 2-2 बच्चे हो गए, तो आगे जो इनको 5 हेक्टेयर्स का एक लैंड है, आगे उनके 2 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा. दैट इज 2.5 हेक्टेयर्स लैंड विल गो टू वन सन. So in this way, small size of holding is there. Not only bete the holding size is small in India, these are fragmented also. Fragmented का मतलब है एक लैंड किसी एक जगह पड़ा हुआ है, दूसरा लैंड किसी और जगह पड़ा हुआ है. ठीक है, that is also quite problematic for the farmer. Then traditional methods of production, they are being used. हमने पहले कह दिया labor intensive traditional methods, एक ही बात है. Then dominance of food crop. इंडिया में जो मैक्सिमम फार्मर्स है ना, दे ग्रो फूड क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस, बाजरा. ठीक है, सो ये चीजें वो है ग्रो करते हैं. इंडिया में नॉन फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स बहुत कम ग्रो होती हैं. आज का इंडियन फार्मर जो है, इवन दो हम अभी सेमी कमर्शियलाइज हो गए हैं, है ना, हमारा पूरी तरह से कमर्शियलाइज नहीं है, हम अपने आप को सेमी कमर्शियलाइज्ड कहलवाते हैं. ना सिर्फ हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग के ऊपर एंगेज हैं, ना हम कमर्शियल के हैं,
सो वी कॉल आवरसेल्व्स सेमी कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग। ठीक है, तो इंडिया में मेन जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं वो फूड क्रॉप्स ग्रो होती हैं, और क्योंकि मैक्सिमम फार्मर्स जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, वो सिर्फ इतनी को क्रॉप ही ग्रो कर पाते हैं कि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके, यानी मार्केटेबल सरप्लस जनरेट नहीं कर पाते, राइट? तो मार्केटेबल सरप्लस जनरेट नहीं कर पाते हैं, तो देयर फार्मिंग इज कॉल्ड एज सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, सो दीज आर फीचर्स। एक फीचर आप ये भी ऐड कर सकते हो, लो प्रोडक्टिविटी। इंडिया में ये वाला डाटा आपने क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में लर्न किया होगा, तो यू कैन यूज द सेम डाटा। इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है, अगर हम सिर्फ दो मेन क्रॉप्स की बात करें, व्हीट और राइस, दैट इज क्वाइट लो। इफ वी कंपेयर, अगर हम इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन करते हैं, हम 47 का डाटा 2016 के साथ कंपेयर करते हैं, तो देयर इज अ मल्टीपल फोल्ड इंक्रीज, 5 गुना बढ़ गई है प्रोडक्टिविटी व्हीट की भी और राइस की भी। लेकिन अगर हम क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन करते हैं, यानी हम अपनी इकोनॉमी का यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी still is quite low. Why is productivity low? Can anyone give me the reason? Raise your hand, I will be unmuting you. Bete, these discussions are now going to be helpful for you. We will be knowing who is listening, who is taking part in the discussion. ठीक है, उसके पोर्टफोलियो में ये चीज जाएगी। So why according to you productivity of Indian agriculture is still very, very low? Anyone? Raise your hand. Okay, no one is there. We have discussed certain points relating to that. Why productivity is low? Okay, we make use of traditional methods. बिल्कुल ठीक है मौलिक। अंडर डेवलपमेंट, रसिका, अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या? अंडर डेवलपमेंट पता चलती है, प्रोडक्टिविटी लो है, दैट इज अ साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट, दैट इज नॉट द रीजन ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ओके वैभव, लैक ऑफ रिसोर्सेज। ओके, लैक ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ठीक है, उनके पास क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं होती हैं, जिस करके वो HYV सीड्स नहीं खरीद पाते, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं खरीद पाते, तो उनकी प्रोडक्टिविटी लो रहती है। बिल्कुल ठीक है बेटे। सो अनदर रीजन आई वुड लाइक टू साइट हियर फॉर लो प्रोडक्टिविटी इज स्मॉल होल्डिंग्स, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। मेरा एक लैंड इधर है, एक लैंड इधर है, ठीक है, मैं दोनों पे बाउंड्री करूंगी, बाउंड्री में लैंड वेस्ट चला जाएगा। अगर मेरा दो लैंड इकट्ठा होता तो मेरा बाउंड्री में लैंड कम वेस्ट होता। अब मेरा लैंड अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह पड़े हुए हैं, तो मेरी बाउंड्री बनाने में मेरा लैंड वेस्ट चला गया। सेकेंडली, मुझे कभी इधर जाना पड़ता है, कभी इधर जाना पड़ता है, ठीक है, सुपरविजन में मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो और मोरओवर अगर मेरा इकट्ठा लैंड होता तो मैं इसके ऊपर मॉडर्न मीन्स यूज कर पाती। अब छोटे छोटे लैंड है, अलग अलग पड़े हैं, मैं उनके ऊपर मॉडर्न मीन्स यूज नहीं कर सकती। ठीक है बच्चे? ओके, awareness, lack of awareness, Pratham is saying bete what kind of awareness is lacking about means of modern means of production? Okay, fine, good try. Okay, now let's move ahead to the importance of agriculture. Why agriculture is important for our economy? Bete, it plays a crucial role in the entire economy. It's the backbone of the economic system of our country, especially जो एग्रीकल्चर है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है हमारे लिए, रॉ मटेरियल का सोर्स है, हमारी कंट्री के ट्रेड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। So let us see what is the role of, हम points डिस्कस कर लेते हैं, इस importance of agriculture को हम point wise डिस्कस कर लेते हैं।
So first point I am discussing is it is the source of livelihood. Just now I told you when we got independence, 72% of the population was dependent upon agriculture. किसी भी कंट्री की 3/4 पॉपुलेशन बेटे एक सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, मायने रखता है. But now this percentage has declined. Now 42.7% people of our country, they are dependent upon agriculture for their livelihood. ठीक है, तो अगर हम यूके और यूएस की बात करें बेटे, तो उनकी कंट्री में सिर्फ 2% ऑफ द वर्कफोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो इंडिया जैसी इकोनॉमी में हाफ पॉपुलेशन 42.7% इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. So you can see how very important this is for our economy. Clear bete? It is the main source of livelihood. Next bete, हम कह सकते हैं contribution to GDP. ये जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, ये हमारी जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है. जो मेजर प्रोपोर्शन है हमारी जीडीपी का, जीडीपी मींस लेवल ऑफ आउटपुट. तो लेवल ऑफ आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस होता है? डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं वो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं. हम उन डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या करते हैं, 3 मेजर सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. राइट? तो प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी कंप्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज. राइट? 51% नियरली जो था 1947 के टाइम की बात करें तो टोटल आउटपुट जितना प्रोड्यूस हो रहा था उसमें से 51% जो था that was contributed by agriculture. Now 1991 की बात करें तो nearly 34% was contributed by agriculture. और अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो बेटे 17% of the output, 17% of the output is being produced in agricultural sector. तो आप ये भी कह सकते हो कि मैम फिर आप क्यों ये पॉइंट इंपॉर्टेंस का कैसे हो गया, हम तो डिक्लाइनिंग है इसकी रेशो, तो परसेंटेज जो है वो कम हो रही है. बेटे ये परसेंटेज जो है वो कम हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो रही है. इसका मतलब ये है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं वो ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं. डू नॉट कंसिडर, ये हम परसेंटेज में दे रहे हैं, 100 में से 17%. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 100 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पर 200 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पर 300 करोड़ की टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुई है. विच मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर 51 करोड़ की प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ पर 68 करोड़ की प्रोड्यूस हो रही है. परसेंटेज कम है लेकिन एब्सोल्यूट फिगर देखो 68%. यहाँ पे 17 into 3 51, गॉट इट? तो 51 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है. सो विच इट सिंपली मीन्स के ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में परसेंटेज कम हो गई है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हुई है. इट सिंपली मीन्स कि जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज फास्ट. गॉट इट? देन बेटे इट इज अ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चरल सेक्टर से लेती हैं.
फॉर एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ठीक है, ऑल दी रिफाइंड ऑयल मेकिंग इंडस्ट्रीज। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल घर में उठा के देख लो, आइदर इट विल बी मेड ऑफ पीनट, राइट, और इट विल बी मेड ऑफ सोया बीन्स और मस्टर्ड सीड्स। सो ऑल दीज कम फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर। और इसी तरह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर सॉस बनती है और जैम्स बनते हैं, जूसेस बनते हैं, और फ्रोजन फूड बनते हैं। ये सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। दीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो कहीं एग्रीकल्चरल सेक्टर बेटे एडवर्सली अफेक्ट हो गया तो ये इंडस्ट्री भी सारी की सारी डूब जाएगी। सो हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कि all the industries, agro-based industries, food processing industries, they depend upon agricultural sector. So agricultural sector is quite important for us. ठीक है? Then बेटे we can say it is again important for trade. Foreign trade के लिए बहुत ज्यादा important है। Foreign trade जो हमारा होता है उसमें से काफी परसेंटेज जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में से जाता है। ठीक है, तो हमें जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज आती है फॉरेन ट्रेड के थ्रू, उसमें से काफी परसेंटेज जो है हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, ये सारी ऑयल सीड्स हो गए, ऑल दीज आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, हेंस our government earns lot of foreign exchange. ठीक है, then it is also बेटे market for industrial product जो rural, okay just wait, हमारी जो population है 2/3 of the population जो है वो villages में रहती है। ठीक है, maximum of them are farmers. सो अब हमारी इंडस्ट्री जितनी मर्जी डेवलप हो जाए, इंडस्ट्री तभी डेवलप होगी बेटे अगर उन इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो आज हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप हो रहा है, जिस करके हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी पर कैपिटा सॉरी एक्सक्यूज मी, उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ रही है। Due to that, they are able to make purchases of industrial goods. So this farming sector comprises market for industrial products. So all these points show us the importance of agricultural sector in India. यहां तक बेटे अगर आपको कोई भी डाउट है तो you can ask. Any doubt anyone is having? Okay, if you have any doubt, you can put in the chat box. I will be attending to it immediately. Now I'm starting with the next point, agricultural policy since independence. So basically in this chapter, we are concerned with what the government has done for the development of agricultural sector since independence, because we have witnessed, we have seen that our agricultural sector was backward, our agricultural sector was stagnant when Britishers left our country, when we got independence. So first 5-year plan में भी आपने देखा कि हमारा जो फोकस था वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर ही था। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर मैक्सिमम हमारी जो पॉपुलेशन थी दैट वाज उनका जो लाइवलीहुड था वो एग्रीकल्चर से ही आ रहा था। सो वी फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 5-year प्लान। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, जिसके करके क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए, जिसके करके हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो डेवलप हुआ। ठीक है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग मेनली इन दिस चैप्टर। सो पॉइंटर्स हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट, improved the infrastructure through public sector investment. For example, irrigation,
रोड्स एटसेट्रा। तो बेटे हमने किसी भी सेक्टर को डेवलप करना होता है ना, तो उसके लिए उसको कुछ बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, तभी वो डेवलप कर पाता है। उन बेसिक फैसिलिटीज को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी? इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत थी, रूरल रोड्स को डेवलप करने की जरूरत थी, पावर सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर आप ट्यूबवेल लगवा दोगे और इलेक्ट्रिसिटी दोगे नहीं फार्मर को, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो हमारे पब्लिक सेक्टर ने यानी कि हमारी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। उसके बाद बेटे गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, जिनको हम लैंड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, तो वो इंट्रोड्यूस किए। हर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ लेजिस्लेशन अनाउंस की, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। देन गवर्नमेंट आल्सो फोकस्ड ऑन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट थ्रू कोऑपरेटिव एंड डायरेक्टेड क्रेडिट थ्रू नेशनलाइज्ड सर्विसेज। ठीक है, सो इसको हम डिटेल में बेटे कल पढ़ेंगे। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क।